Hello everyone. So in the previous class, we were studying about KL divergence and your information gain. I did highlighted some points related to them. However, I need to complete my discussion based upon it. Okay. So what's happening? As I started decision tree and told that you have to create a tree by splitting the notes. Okay, that's what we are going to do. For splitting, there is a criteria which you have to apply, then only we can split a tree. That is your entropy. Okay, Gini index. Okay, we will talk about information gain also. All these things are present. Okay, as I told that if something which is not in a state of stability, we can divide it and convert it into stable position. All right, entropy as we mean degree of randomness. Okay, minus px log of px, that is entropy. Okay, where p is the probability. All right, we are having cross entropy also, like ce minus px log of qx. We are having KL divergence minus px log of, just take px log of px upon qx. That's what we are having, KL divergence. Fine. These all represents degree of uncertainty, randomness, impurity in the data. Okay. So the basis of dividing a tree into parts is to filter out impurity and convert it into a pure state. That's what we want. So at the end, you are getting a result as a pure one, that is your outcomes. At the last, at the leaves, that are the external nodes. So meanwhile, these all are internal nodes. Okay, internal nodes. This is the root node, and at the end you are going to get the results. External nodes पर result मिलेगा आपको. Okay, 1 0 whatever the result you are going to get, ये यहाँ पर दिखेगा. बात ये हो रही है, you are going to apply entropy, you are going to check the randomness, you are going to check the impurity, then on the basis of impurity you are going to split. Okay, and we did talked about different things in the previous class, that when we have to split, entropy ज़्यादा होगा, more entropy will be there, then you are going to split, या लेस impurity या लेस entropy होगा, then you are going to split. अब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, what I feel, यदि randomness ज़्यादा है, impurity ज़्यादा है, तो मोर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा आपको उसे समझने में. मोर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड what is present in it. हाई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, हाई हाई एंट्रोपी, हाई रैंडमनेस है, क्योंकि ब्लू एंड ब्लैक बॉल्स जो हैं, आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ब्लैक बॉल्स, सो ऑब्वियसली मोर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू पिक अप एनी बॉल फ्रॉम द बास्केट. ओके, ये सीन है. ओके, तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो जाके जो है वो ब्रेक होगा. ओके,
और इसी के अपोजिट जिनी इम्प्यूरिटी की मैं आगे बात करूंगा। जिनी इम्प्यूरिटी, जिनी की वैल्यू, ये जिसकी कम होगी, जिस फीचर की कम होगी, जिनी इम्प्यूरिटी, वो ब्रेक होगा। अल्टीमेटली आई नीड टू आइडेंटिफाई अ फीचर about which I need to break the data, split the data, ये मुझे फीचर निकालना है। तो क्वेश्चन यही उठता है कि आप ये कंडीशंस लगा रहे हैं, यू आर अप्लाइंग एंट्रोपी, यू आर अप्लाइंग जीनी इंडेक्स। ओके, सो हाई एंट्रोपी होगी देन इट विल ब्रेक, या लो एंट्रोपी होगी देन इट विल ब्रेक। यदि लो एंट्रोपी है, लो एंट्रोपी मीन्स देर इज नो रैंडमनेस इन द डेटा, मीन्स द डेटा इज ऑलरेडी सेचुरेटेड, होमोजीनियस है वो, तो उसको ब्रेक करने से आई डोंट, कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इफ आई एम अवेलेबल विद ऑल ब्लू बॉल्स इन अ बास्केट, so this is not conveying any information, because if I pick any of the ball it will come blue only, so I don't require any information. Information requirement tab hoga when I will be having a mix of balls in the basket, तब इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगा, यानी रैंडमनेस होगी। तो जिसकी ज्यादा रैंडमनेस होगी, एंट्रोपी होगी, ठीक है, ऑलराइट, तो देखना पड़ेगा। एंड चलो आगे और बात करेंगे, विल टॉक मोर अबाउट इट। ये पढ़ते पढ़ते केएल डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आया। ओके, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ। केएल डाइवर्जेंस, एंड वी टोल्ड दैट KL divergence is a difference between the distribution. If we are available with the distributions, for example P and Q, divergence is a difference between these two. फिर क्वेश्चंस उठे, सर यू टोल्ड कि रेफरेंस या बेंचमार्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, and उससे corresponding another different another distribution you are going to check. That means you are having a benchmark distribution and you are having another distribution, and we are going to find the difference between them. So what is this benchmark distribution, and why we are checking with respect to that the another distribution? तो आपको बोला था मॉडल, मॉडल को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उसकी वर्किंग को समझना है, ड्रिफ्ट निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है डेटा में। ओके, सो यू वर talking about the KL divergence. Now I want to explain this thing in more detail. KL divergence. Now listen to me. जो KL divergence है, it is a relative entropy, है ना। आपने क्या लिखा था, px log of px upon qx, that is relative entropy. So it is a relative entropy. It is a statistical measurement from information theory that used to quantify the difference between one probability to the another probability, and the another probability is a reference probability. तो एक मेरा reference होगा, and with that reference I am checking the probability of another distribution. That's what I'm doing. One is my reference, and corresponding to that, I'm checking another distribution. Some people misunderstood KL divergence. They only feel it is a statistical distance from one distribution to another, just only a statistical distance. Okay, but it is having many more things. KL divergence जो है ये नॉन सिमेट्रिक होता है। ओके, और आपने देखा भी था, प्रॉपर्टी पढ़ी भी है केएल डाइवर्जेंस की, इंफॉर्मेशन जब मैं पढ़ा रहा था इंफॉर्मेशन थ्योरी, कि केएल डाइवर्जेंस फॉर पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू पी, दैट इज नॉट, दैट इज नॉट इक्वल, ठीक है, ये नहीं होल्ड करता प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट सिमेट्रिक। आप फॉर्मूला भी देख लीजिए, यू कैन चेक द फॉर्मूला। सी दिस इज केएल डाइवर्जेंस ऑफ पी बाय क्यू. If I write q by p, so my formula will be qx log of qx upon px.
तो देख लीजिए, दीज टू आर नॉट इक्वल, तो कम्यूटेटिव नहीं है ये, ए डॉट बी डॉट ए या जो भी आप कहें, इट्स नॉट सिमेट्रिक इन नेचर, नहीं होता। अभी इतना समझे हम कि सर यू आर हैविंग अ बेंचमार्क या रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड you are having a distribution of a variable or a feature, and you are trying to calculate the divergence between them. Okay, divergence, it's not only simple a distance, you are not talking about only a distance, ये पूरा ड्रिफ्ट की बात कर रहा है। Okay, in practice it can also sometimes be difficult to know when to use one statistical distance over another, that means ये कई बार मिसअंडरस्टूड होता है ये, डाइवर्जेंस में सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। ओके, अभी बताते हैं आगे व्हाट इट इज। सो difference in information, it is actually difference in information represented by two distribution, p is giving some information, q is giving some information, I need to calculate the difference between these two information, that is divergence. I am having discrete also, I am having continuous also, this is for the continuous, that is KL divergence, this is the KL divergence for continuous। ओके, जहां पर इंटीग्रेशन लगा है, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, दिस इज स्केल डाइवर्जेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन पी एंड क्यू, इंटीग्रेशन लगा है। ओके, सिमिलरली आई कैन टेक द समीशन साइन, तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्रीट के लिए, इन डिस्क्रीट वी आर हैविंग अ समीशन साइन टू फाइंड द डाइवर्जेंस। ऑल राइट, ये चीज हो जाएगी, फाइन। तो भाई कल के लेक्चर में प्रीवियसली आपको बोला गया मॉडल मॉनिटरिंग में इसका यूज होता है, केएल डाइवर्जेंस का। एज अ डेटा साइंस प्रैक्टिशनर्स almost exclusively use discrete form of KL divergence, discrete का use करते हैं, because here as I told in the previous lecture also, we can make bins or the towers जो कि easy है। For example, this is my reference distribution and this is my actual distribution। okay, ये मेरा actual distribution है, so I can compare these two easily, comparison हो जाएगा। so it will let me know कि what is the divergence, how much is the divergence, that means if this is distribution A, ये बता रहा है B, तो I will take A minus B and I will do some more further operation, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी क्या करना है। तो बिन्स बनाना वो आसान है, I can perform the binning of the data for discrete and that will help us। okay, so the discrete form of KL divergence and continuous form to forms do converge as a number of samples bins limit to move to infinity। ठीक है, मतलब आप बिन्स की हेल्प से ये रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक एग्जांपल आई विल गोइंग टू शो यू दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो भाई मॉडल मॉनिटरिंग में काम आ रहा है ये क्या इशू है, व्हाट इज मॉडल मॉनिटरिंग। सी, KL divergence is used to monitor production environment, specifically around feature and prediction data। that means it ensure that input and output in production doesn't drastically change from a baseline। so there will be some baseline data, there will be some baseline distribution, I already told in the previous lectures। this baseline can be a training production window or a data or a training or a validation data set। ये एक ऐसा डेटा सेट होगा जो आपको कंपनी या प्रोडक्शन की तरफ से दिया जाएगा कि भाई whatever be the model you are using, it should not deviate from my baseline data, या डेविएट कर भी रहा है तो वो तो मैं कैलकुलेट करूंगा ये डाइवर्जेंस से, केएल डाइवर्जेंस से मैं, मुझे ये तो कैलकुलेट करना है कि हाउ मच इट इज डेविएटिंग फ्रॉम द बेसलाइन डेटा। सो एनी प्रोडक्शन, एनी कंपनी, एनी फर्म, दे विल गिव यू अ सेट ऑफ डेटा फॉर ईच फीचर, दे विल टेल कि भाई इस फीचर की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक हो सकती है। okay, because we do the work, we know that this feature may comprises of these values। okay, now you are giving some values in your model as an input, you are getting an output, just check whether this baseline and the input and the output which you have given, the distribution of them are how much variation they are giving। okay, so drift monitoring is been done,
That is specially useful for teams that received delayed ground truth to compare against the production model decisions. These teams rely on changes in the prediction feature distribution as a proxy for performance. That means that means the teams who are working over the data, they will check out these issues, okay, of the divergence, okay, and then later on whatever be the task they need to perform, they will do. Let us talk about the example. As I already told in the previous lecture, KL divergence is applied on each feature independently. Okay, it is not designed as a covariant feature measure, but rather a metric that shows how each feature is diverged independently from the baseline value. उतनी ही बात है, बार बार घुमा फिरा कर ये आपको एक ही पॉइंट पे खड़ा कर रहा है। यानी कि जैसे मेरे पास ये डेटा है, लेट अस सपोज आई एम हैविंग आई एम हैविंग कार डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, डेबिट कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल, ये सबका डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। ओके, इसमें द शेडेड वन इज योर बेसलाइन, इट इज योर बेसलाइन डेटा। ओके, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस वैल्यूज है। जैसे कार की रेफरेंस वैल्यू है 10 या बेसलाइन है, और ये प्रोडक्शन है, दिस इज द प्रोडक्शन। ये टीम है जो काम कर रही है डेटा पे। ओके, तो उनको ये बता दिया गया है कि भाई इतना बेसलाइन है डेटा, इतना बेंच मार्क जो है ये वैल्यूज हैं। अब आप जो काम कर रहे हो, एक्चुअल मुझे जो आया वो 8 आया, फॉर एग्जांपल एक्चुअल इज 8 विच आई रिसीव फॉर द कार। जो टीम वर्क कर रही थी उसका ये आउटकम आया 8। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैंने बोला कि 10 कार्स की डिलीवरी होनी है अप टिल सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। प्रोडक्शन ने काम करा अपना, उसने 8 की डिलीवरी दी, दिस इज द आउटकम, एक्चुअल वैल्यू। तो क्या हो रहा है, ए माइनस बी कैलकुलेट करा आपने, दिस इज द डाइवर्जेंस। ठीक है, ए माइनस बी दैट इज 8 - 10, जब आपने कैलकुलेट करा तो 10% आया ये। कैसे 10% आया है, हाउ 10% कीम, सो 8 - 10 अपॉन 10 लेना पड़ेगा मुझे, ऐसे ही कुछ कर रहा होगा वो, समथिंग लाइक दिस इनटू 100। सो 8 - 10 इज 2 अपॉन 10 इनटू 100। सो ये आपका जो गया, हाउ मच इट इज 2/10। सो ये कितना हो गया, 100 है, 2 5 10, 5 20 कुछ ऐसा मेरे पास 20 आ रहा है। ये 10% बोल रहा है, ए माइनस बी इट इज सेइंग 10%, समथिंग लाइक दैट उसने अपना बोला। मैं जब रेशो निकाल रहा हूँ, उसका परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो उसे 20% करके मुझे मिल रहा है। देख लीजिए आप, हाउ मच ए माइनस बी इट इज सेइंग 10%, दिस इज द डाइवर्जेंस इट इज सेइंग कि 10% का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। ओके, मेरा रेफरेंस था 10, आई गॉट एक्चुअल 8। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस। यहाँ ये कह रहा है 10%, या अपनी तरफ से रैंडम वैल्यू पुटअप करा है इसने, हो सकता है 10%, यहाँ इसका 5 और 9 में 5%, 8 और 8 में 8%। तो मुझे लग रहा है ये रेफरेंस, ये कुछ ना कुछ वैल्यूज अपनी तरफ से पुटअप कर रहा है डेटा में। फिर लॉग लिया, लॉग ऑफ ए बाय बी ये लिया, एंड देन फिर केएल डाइवर्जेंस निकाला। ओके, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन ए माइनस बी कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ ऐसा कर रहा होगा, और यहाँ डाइवर्जेंस निकाला। मुझे तो बस आपको ये बताना है, that's what I need to teach you, that these are the baseline data and these are the production. Okay, in KL divergence I am checking that what is the difference in the distributions of the baseline and the production one, ये हमें बताना है। ओके, तो px जो है, ये ऑरेंज स्ट्रिप्स जो आ रही हैं, दैट इज द रेफरेंस और द बेस जो है बेसलाइन है, ठीक है। एंड द विंडो वाले जो हैं वो प्रोडक्शन डेटा है ओवर द ट्रेनिंग डेटा सेट्स। Each bean additively contributes to the KL divergence. The beans jointly add up for the total percentage distribution.
वो कर रहा है बीन्स को ऐड करके, तो हो सकता है ये टोटल करके ही कुछ करा है इन्होंने, टोटल ऑफ ए एंड बी का लेकर फिर उन्होंने ये परसेंटेज निकाला है। फॉर्मूला तो क्लियर नहीं करा उन्होंने क्या लगा रहे हैं, बट दे माइट बी टेकिंग द कंप्लीट ए एंड कंप्लीट बी समथिंग, उससे कुछ वो परसेंटेज निकाल रहे हैं। ओके, सो आई एम हैविंग दीज थिंग्स इंडिपेंडेंट, यू कैन सी। ये जब मेरा पूरा इंडिपेंडेंट सब था, कार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कलेक्शन, हाउस, सबका डिस्ट्रीब्यूशन था मेरे पास, और मैं देख रहा हूँ कितना डाइवर्ज हो रहा है। दैट इज द केएल डाइवर्जेंस। ओके, तो जैसा बोला भी गया कि सिमेट्री नहीं होता है, नॉन सिमेट्रिक होता है। यदि हम स्वैप कर दें, इफ यू स्वैप द बेसलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, देख लीजिए, यदि ए को बी बनाया, बी को ए बनाया, ए को बी बनाया, ये देखिए स्वैपिंग कर दिया ए एंड बी, एंड देन इफ आई कैलकुलेट ए माइनस बी एंड ये लॉग निकाला और ये सारा चीजें करा, तो इट इज सेइंग कि वो जो है सिमेट्रिक नहीं होता। ओके, ये आपको प्रॉपर्टी पहले भी बता चुके हैं। फाइन, तो केएल डाइवर्जेंस कैन बी यूज्ड टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। ऑल सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में आई कैन यूज द केएल डाइवर्जेंस टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन, your categorical and the continuous. Okay, that's what I can do. All right, तो कैसे करेंगे हम, how we can do that? ये देखिए, ये आपका न्यूमेरिक्स की बात करें, इन केस ऑफ न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन द डेटा कैन स्प्लिट इनटू बिन्स ऑन कट ऑफ पॉइंट्स, बिन साइजेस एंड बिन विड्स। द बिन स्ट्रेटेजीज कैन इवन बिन क्वांटाइल वगैरह जो करना है वो कर सकते हो, तो डेटा को कट ऑफ कर सकते हो बिन्स में। यू कैन रिप्रेजेंट द डेटा इनटू बिन्स, एंड जैसा आपने ऊपर करा था, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। ओके, तो बिन्स बना सकते हैं आप न्यूमेरिकल डेटा में। कैटेगरिकल डेटा में what you can do for KL divergence calculation in categorical data, it tracks large distributed shift in the categorical data set. In case of categorical feature, there is a size where the cardinality gets too large for a measure. Cardinality means number of data points present, that is called as cardinality. तो आइडियल साइज होता है 50 से 100 यूनिक वैल्यूज का। As the distribution has higher cardinality, the question would how do two distribution really matters in model. तो जैसे आप कैटेगरिकल डेटा ले रहे हो, एंड कैटेगरिकल में बाइनरी ही है, सिर्फ 0 and 1, तो ठीक है। ओके, बट यदि वो कह रहा है इफ द cardinality is more, दैट मीन्स इफ द डेटा पॉइंट्स आर मोर, आई थिंक क्लासेस भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में इन जनरल तो हम जो क्लासेस लेते हैं कैटेगरिकल की बात कर रहे हैं, कैटेगरिकल दैट मीन्स 2 या 4 या 5 क्लासेस तक की बात करें तो इतना ही कैटेगरिकल हो सकता है। ये कह रहा है आइडियल साइज जो है 50 to 100 यूनिक वैल्यूज का हो सकता है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हाई कार्डिनलिटी के अंदर आता है। और यदि आपके पास 50 to 100 यूनिक वैल्यूज हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिस्ट्रीब्यूशंस को सेपरेट करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, टू सेपरेट अ डेटा विथ 50 to 100 यूनिक वैल्यूज। मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि बाइनरी क्लासिफिकेशन में, बाइनरी में, कैटेगरिकल में ओनली 2 वैल्यूज आर देयर, यानी कि ए ले लो, बी ले लो, 0 1 बोला था, ए बी ले लीजिए आप, या ट्रू फॉल्स ले लीजिए, दैट इज ओके। बट 50 to 100 यूनिक वैल्यूज, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, तो भाई क्या करना चाह रहे हैं ये, व्हाट दे वांट टू डू इन केस ऑफ हाई कार्डिनलिटी फीचर मॉनिटरिंग, आउट ऑफ द बॉक्स स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस डू नॉट जनरली वर्क वेल, ये काम नहीं करता। ओके, तो उसके लिए दे हैव टू डू एम्बेडिंग्स, एंड दे हैव टू डू प्योर हाई कार्डिनलिटी कैटेगरिकल, ये कुछ उनको काम करना पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए। ओके, तो हम इतना डेप्थ की बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग इन दैट मच डेप्थ। ओके, बट कुछ ना कुछ ये टास्क उसको परफॉर्म करेंगे। फाइन, तो ये आपका फिर से एग्जाम्पल आया केएल डाइवर्जेंस का। ये देखिए, इस तरीके से कुछ डेटा दिया, यू आर हैविंग 91 to 93 में आपने ये वाला जो है, ठीक है, जहां पर बिन्स बनाया है, तो क्रॉस भी है, बेसलाइन भी है, एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, उनका रेफरेंस वैल्यू है ए एंड रेफरेंस वैल्यू बी, बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट हियर। ऑलराइट, देन ए का ये परसेंटेज निकाला, ठीक है,
लॉग लिया एंड के एल डाइवर्जेंस निकाला। फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल द फॉर्मूला अगेन? आप ले लीजिए, पी है ए, दिस इज पी, दिस इज क्यू। द फॉर्मूला इज पी log ऑफ पी बाय क्यू, दैट इज द के एल डाइवर्जेंस। तो ये log ऑफ पी बाय क्यू भाई निकाल चुका है। पी मेरे पास है ही पहले से ही, यानी 3%। ओके, तो 3% को आप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लीजिए एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको के एल मिल जाएगा। दैट विल बी दी आंसर। ओके, सो इसको लेकर ज्यादा ट्विस्ट नहीं करने का बिल्कुल भी। what you have to understand here is I am calculating the divergence in the data। अब ये क्यों मेरे कंसिडरेशन में डिसीजन ट्री में आ रहा है? व्हाई दिस इज क्रिएटिंग एन इशू इन डिसीजन ट्री? देखिए, आप डिसीजन ट्री में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द डेटा, तोड़ रहे हो उसको। ओके, तो आई एम अवेलेबल विद द डेटा एंड आई एम ब्रेकिंग एंड आई एम मेकिंग द सबसेट्स ऑफ द डेटा। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो कहीं ना कहीं किसी भी फीचर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू इट, क्योंकि आप ये टास्क परफॉर्म करोगे, डेटा को डिवाइड करोगे, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात होगी। ओके, और इस फॉर्मूले में भी आप जब देखें, इन इन दिस फॉर्मूला विच यू आर टॉकिंग अबाउट, इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, चलो यहीं पर लिख देता हूँ, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब ये पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, ये तो एंट्रोपी होती है। इफ आई इसमें एंट्रोपी और क्रॉस एंट्रोपी दोनों होती है। इफ आई से पी एक्स log of px upon qx, if I take log of a by b, so px log of a minus log of q, log p minus log q, ऐसा करूंगा मैं। एंड इफ आई मल्टीप्लाई px इनसाइड, तो डेट विल बी px log of p माइनस px log of q। तो ये होती है एंट्रोपी और ये होती है क्रॉस एंट्रोपी। सो एंट्रोपी माइनस क्रॉस एंट्रोपी स्केल डाइवर्जेंस, ये चीज है। तो भाई ये दोनों ही लगी है मेरे डिसीजन ट्री में, एंट्रोपी तो लगी ही लगी, एंट्रोपी तो है ही। तो एंट्रोपी में से क्रॉस एंट्रोपी को माइनस कर देना। क्रॉस एंट्रोपी मीन्स वंस यू आर हैविंग अ बेस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वंस यू आर हैविंग द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये चीजें हैं। तो डाइवर्जेंस आपको मिलेगा, हाउ योर फीचर इज बिहेविंग, हाउ मच इट इज डेविएटिंग फ्रॉम द बेस लाइन, ये आपको यहां से पता चलेगा। तो मॉडल मॉडल की वर्किंग जो है वो हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बेसलाइन डेटा दिया होगा आपको, ऑल द फीचर्स आर प्रेजेंट इन द डेटा, व्हाट विल बी द आउटकम्स रिलेटेड टू इट, यू आर राइटिंग। डेटा सेट आपने देख लिया है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्जेंस। ओके, ये सारी चीजें तो मॉडल मॉनिटरिंग में इसका यूज होगा। ओके, इसके बाद आई एम हैविंग वन मोर थिंग, दैट इज योर इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो डाइवर्जेंस में आपको व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ एक्चुअल इज डेविएटिंग फ्रॉम द रेफरेंस, that is calculated by KL divergence formula, you know, you can apply it and get the value। इंफॉर्मेशन गेन की बात करें, सो इट इज अ measure used to determine which feature should be split। okay, which feature should split, ये बता रहा है यूजिंग एंट्रोपी, कौन से फीचर को मुझे तोड़ना है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी, दिस इज गिवन बाय इंफॉर्मेशन गेन। तो जस्ट few moments back I was talking about this thing only। ओके, मैं बात कर रहा था कि एंट्रोपी रैंडमनेस होती है। सो द फीचर विच इज हाईली रैंडम, जो अनस्टेबल होगा, उसको मुझे बताना पड़ेगा। इफ आई एम गोइंग टू पिक एनी ऑफ द बॉल, उसमें से ब्लू एंड ब्लैक
any of the ball may appear. So I need to focus upon I need to focus upon कि कौन सी बॉल आएगी, तो रैंडमनेस ज्यादा है, प्योरिटी नहीं है, हिट्रोजीनियस डेटा है. तो information gain is going to help me which feature I am going to select for the splitting purpose on the basis of entropy. एंट्रोपी आपने पढ़ लिया, इम्प्यूरिटी के बारे में बताता है, और ये भी मैं समझा चुका हूं सारा. दिस इज वेरी मच इम्प्योर. वाई? बिकॉज ब्लू एंड रेड बॉल्स आर प्रेजेंट इन इट, ज्यादा मात्रा में है. यहाँ रेड बॉल्स कम मात्रा में है, इन लेस नंबर, सो इट इज लेस इम्प्योर. और ये पूरा प्योर है बिकॉज ऑल द ब्लू पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन इट. ओके. तो भाई यहां मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होगी. ठीक है. सो इफ आई कंसिडर अ डेटा सेट ऑफ n क्लासेस, सो एंट्रोपी विल बी पी लॉग ऑफ पी, समीशन ऑफ 1 to n. ये करते हैं ना, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, ये एंट्रोपी होती है, ये निकालते हो आप, सब पूरा कर लेते हो, इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है. जैसे आपको एग्जाम्पल भी ले लिया यहाँ. यू आर हैविंग अ सैलरी, यू आर हैविंग एन एज, यू आर हैविंग अ परचेज, यस या नो. तो व्हाट यू आर डूइंग, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स आप ये कर दीजिएगा. ठीक है. सो यस के कितने हैं 2, नो के कितने हैं 3, टोटल है 5. हाउ मेनी टोटल यस एंड नो आर प्रेजेंट हियर? 5. सो यस के हैं 2, नो के हैं 3. ओके. सो 2/5 पहले यस का कर लेते हैं. लॉग ऑफ 2/5 माइनस 3/5 लॉग ऑफ 3/5, तो एंट्रोपी आ गई है 0.97. हाई रैंडमनेस है इस डेटा में. अब यहां देखो, ओनली 1 yes इज प्रेजेंट एंड 4 no इज प्रेजेंट. तो देखो एंट्रोपी कम हो गई है अब, 0.72. रैंडमनेस इज डिक्रीज्ड, 0.72 हो गई. करना वही है, 1/5 लॉग ऑफ 1/5 माइनस 4/5 लॉग ऑफ 4/5, ये करना है. दैट्स इट. और यहां देखो, ऑल नो, तो यहां एंट्रोपी 0 हो गई. क्यों? क्योंकि प्योर है वो तो, देर इज नो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट. तो प्योरा प्योर है, तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं कुछ करने का. तो इंफॉर्मेशन गेन बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी आई एम गोइंग टू स्प्लिट द डेटा, ये वो बोल रहा है. तो क्लियर करो, क्लियर करो कि एंट्रोपी ज्यादा होगी तो स्प्लिट करोगे या कम होगी तो स्प्लिट करो? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? दैट्स अ क्वेश्चन. अब जैसे यहां पर है, उन्होंने और बनाया, और क्लासेस बना दी, यस नो मे बी, एंड टोटल 8 एंट्रीज हैं यहां पर प्रेजेंट. टोटल 8 एंट्रीज आर प्रेजेंट. यस का है 2, 2 फॉर द यस, 3 फॉर द नो, एंड मे बी का भी 3 है, 3 फॉर द मे बी. सो यस की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/8 लॉग ऑफ 2/8. नो की कितनी आएगी? 3/8 लॉग ऑफ 3/8. मे बी की कितनी आएगी? 3/8 लॉग ऑफ 3/8. और एंट्रोपी 1 के ऊपर आ गई. आपसे क्या बोला था मैंने? एंट्रोपी इन जनरल, एंट्रोपी इन जनरल 0 से 1 के बीच में होती है, बट इट डजेंट मैटर, वो 1 से भी बड़ी हो सकती है ना. इट मे बी मोर देन 1 हो सकती है, और आपको सामने दिख भी रही है, 1.56 एंट्रोपी है. इट इज मोर देन 1 हो सकती है. तो भाई ये सारी चीजें हुई, इसका कोड वोड भी है, वो सब चल जाएगा. अब मेरा वो इशू नहीं है, दैट्स नॉट द कंसर्न. मेरा जो इशू है इंफॉर्मेशन गेन का. What is information gain? So information gain is entropy of parent minus weighted average of entropy of children. In the previous class also I did told about this thing. Entropy of parent minus weighted average of entropy of children. ये होती है information gain. So I need to again pick up some example to discuss information gain. Let us suppose you are having 30 people, both male and female.
30 पीपल हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, आर स्प्लिट अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है मुझे, एंड ईच person's age is compared to 30 and they're separated into two child group. तो कंडीशन क्या लगाई मैंने, व्हाट इज द कंडीशन? आई एम हैविंग 30 पीपल, मेल फीमेल बोथ हैं, तो लेट अस सपोज ये मेल फीमेल बोथ है मेरे पास, and I need to split it into two parts according to the age. Age is one of my feature. इसके अबाउट मुझे स्प्लिट करना है, कंडीशन है ग्रेटर देन 30 वाला। इफ एनी ऑफ द मेल इज ग्रेटर देन 30 तो उसको अलग कर दो, फीमेल ग्रेटर देन 30 उसको भी इसी के साथ मिला दो, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन एज ग्रेटर देन 30, अलग अलग करना है। सो वी आर बिल्डिंग अ डिसीजन ट्री टू प्रोटेक्ट, जैसे टू प्रोटेक्ट वेदर अ लोन गिवन टू अ पर्सन विल बी राइट ऑफ और नॉट, यानी वो चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा। ओके उसी तरीके से देखिए, अवर एंटायर पॉपुलेशन इज हैविंग 30 इंस्टांसेस, दैट इज सपोज, अभी ऊपर वाला ही आपका ये एग्जांपल है, यू आर हैविंग 30 डेटा पॉइंट्स, लेट अस सपोज 16 जो है वो राइट ऑफ क्लास एंड 14 इज नॉट नॉट राइट ऑफ क्लास, यानी मान के चलो 16 मेल है और 14 फीमेल है, ऐसा मान के चलो। और नहीं तो आप यही वाला फाइनेंशियल का ही कंसिडर कर रहे हो, तो ऐसा मान के चलो 30 डेटा पॉइंट्स हैं, 16 लोन चुका सकते हैं, 14 कांट राइट ऑफ द लोन, नहीं कर सकते। वी हैव टू फीचर्स, बैलेंस, बैलेंस है, एंड रेसिडेंस, दो फीचर है आपके पास, बैलेंस एंड रेसिडेंस। बैलेंस में दो, यू आर हैविंग टू वैल्यूज, लेस देन 50, ग्रेटर देन 50। रेसिडेंस में आपने कहा ही इज हैविंग इट्स ओन हाउस, रेंट पे रह रहा है या अदर। तो फीचर नंबर 1 देखिए आप, बैलेंस। ओके व्हाट्स हैपनिंग, फॉर एग्जांपल ये देखिए, यू आर हैविंग 30 इंस्टांसेस, 16 लोन चुका सकते हैं, 14 कांट पे द लोन। So the probability of those who can pay the loan is 16 by 30, and the probability who can't pay the loan is 14 by 30. It's quite clear, दिख ही रहा है। I am splitting my data on the basis of balance. For example, I am splitting my data on the basis of balance. मेरे पास two features हैं, one is your balance, another is your house. तो let us first check balance. यदि बैलेंस 50 से कम है, फॉर एग्जाम्पल दोज पीपल हुज बैलेंस इज लेस देन 50, तो मान के चलो 13 पीपल ऐसे आए हैं हुज बैलेंस इज लेस देन 50, आपको पता लगा, ठीक है कि 13 पीपल वर देयर हुज बैलेंस इज लेस देन 50, उसमें जो लोन चुका सकते हैं वो 12 है और जो नहीं चुका सकते हैं वो 1 है। ओके तो इनका भी आपने प्रोबेबिलिटी निकाला इंडिविजुअल, 12 upon 13, 1 upon 13, this is the probability. Similarly, those who cannot pay the loan, for example राइट ऑफ नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल उनका, जैसे हम ही कह रहे हैं कि राइट ऑफ वाली बात नहीं, बैलेंस मोर देन 50 है, दोज पीपल हु आर हैविंग बैलेंस मोर देन 50, तो 13 पीपल तो इधर थे, तो रिमेनिंग 17 इधर आएंगे ऑब्वियसली, टोटल 30 था ना, सो 13 जो है जिनका बैलेंस लेस देन 50 है वो इधर आ गए, सो 17 उधर जाएंगे। सो हियर 4 पीपल आर फॉर ब्लू डॉट एंड 13 फॉर द ऑरेंज, ऐसा है। एंड अगेन वी कैलकुलेटेड देयर प्रोबेबिलिटीज, तो यहां पर पेरेंट की प्रोबेबिलिटी निकाला है आपने, प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी नहीं, प्रोबेबिलिटी निकाला है अभी आपने, ठीक है। ये 16/30, 14/30 ये आपने करा, और यहां आपने करस्पॉन्डिंगली यहां भी प्रोबेबिलिटी आपने निकाला है। सो वी स्प्लिटेड पेरेंट इनटू 2 चाइल्ड, दैट्स व्हाट वी डिड। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट नोड। पेरेंट की एंट्रोपी क्या होगी,
व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ पेरेंट? पेरेंट की एंट्रोपी होगी px log ऑफ px, यानी 16/30 log ऑफ 16/30, बाहर माइनस लगाना। फिर 14/30 log ऑफ 14/30, बाहर माइनस लगाइए, ये पेरेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। उसी तरीके से यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इनकी भी निकालना है आपको। यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड्स। ओके, फाइन। तो वो अभी नीचे निकालेंगे, अभी तो पेरेंट की प्रोबेबिलिटी निकाला है उन्होंने। दिस इज द पेरेंट प्रोबेबिलिटी विच कैलकुलेटेड 0.99 आया, एंट्रोपी निकाला है पेरेंट की एंट्रोपी, दैट इज कमिंग 0.99। आपको चाइल्ड्स की भी निकालना है आगे। दिस इज द एंट्रोपी फॉर चाइल्ड, लेस देन 50 वाला एंड ग्रेटर देन 50 वाला, ये इनका भी एंट्रोपी निकाला। वेटेड एवरेज क्या होती है? व्हाट इज वेटेड एवरेज एंट्रोपी? वेटेड एवरेज का मतलब होता है 13/30। हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर देयर इन लेस देन 50? 13 थे, तो 13/30 और उनकी एंट्रोपी प्लस 17/30 और उनकी एंट्रोपी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वेटेड एवरेज आएगा। फिर पेरेंट में से इनकी इसको माइनस करना है, दैट विल बी द इंफॉर्मेशन गेन। तो 0.37, दिस इज द इंफॉर्मेशन गेन। तो ये बता रहा है, इट इज टेलिंग दैट इफ आई एम टेकिंग बैलेंस एज अ फीचर एंड इफ आई विल split the data according to the balance, the information gain which I will be getting here is 0.37, ये मुझे मिल रही है। ठीक है, और देयर आर अदर फीचर्स ऑल्सो। रेसिडेंस भी है मेरे पास, आई एम हैविंग रेसिडेंस ऑल्सो। सो इफ आई कंसिडर रेसिडेंस नाउ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर रेसिडेंस। तो रेसिडेंस में आई एम हैविंग द पीपल हु ओन द हाउस, हु आर रेंटिंग, लिविंग ऑन अ रेंट, एंड अदर्स। ऐसा है, तो ये आपको जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। दीज पीपल, स्टार एंड ब्लू पॉइंट्स, दीज आर द पीपल हु आर हैविंग ओन हाउस। तो इनका भी प्रोबेबिलिटी निकालिए इंडिविजुअल। इसका तो वही होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंट एंड द एंट्रोपी ऑफ पेरेंट इज सेम, ये चेंज नहीं होगा। पेरेंट का तो सेम ही है ना, इट विल नॉट चेंज। फीचर्स का बदलेगा, फीचर्स का तो चाइल्ड का बदलेगा, यानी कि अब मेरा रेसिडेंस के हिसाब से मैं चल रहा हूं। पहले आई वॉज टेकिंग बैलेंस, नाउ आई एम टेकिंग रेसिडेंस। ओके, तो भाई यहां पर ये रेसिडेंस है, ओन का है, तो 8 पॉइंट्स आर प्रेजेंट, तो आपने देखा इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया दोनों का। सिमिलरली यहां रेंट वाला था, तो आई अगेन कैलकुलेटेड बोथ द प्रोबेबिलिटी, इनका भी निकाल दिया और यहां पर इनका भी निकाल दिया, जो अदर में थे उनका भी प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। फिर क्या करना है? अगेन पेरेंट का एंट्रोपी और चाइल्ड की एंट्रोपी निकालनी है। सो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ दिस? 7/8 log ऑफ 7/8, 1/8 log ऑफ 1/8, है ना, माइनस लगाना दोनों में आउटसाइड पे एंड रिजल्ट निकाल देना। इसका क्या होगा? 4/10 log ऑफ 4/10, 6/10 log ऑफ 6/10, बाहर माइनस लगेगा, सॉल्व कर लेना। हियर ऑल्सो द सेम थिंग। फिर इनका वेटेड एवरेज निकालना है। सो व्हाट विल द वेटेड एवरेज? यहां पर 8 एंट्रीज हैं, तो 8/30 इंटू जो इसकी एंट्रोपी आई है वो यहां पर लिख देना, E1, लेट अस सपोज E1, प्लस ये हो जाएगा 10/30। वाई 10/30? बिकॉज टोटल एंट्रीज आर 10 हियर, तो 10/30 इसका एंट्रोपी लिख देना, प्लस ये कितना हो जाएगा? हाउ मच इट विल बी? 12/30, इसकी जो एंट्रोपी आई है वो लिख देना, ये वेटेड हो जाएगी। दिस इज द वेटेड एंट्रोपी।
तो जो पेरेंट की एंट्रोपी है उसमें से इसको माइनस करना है, दैट विल बी द इंफॉर्मेशन गेन. देख लो. सो दीज आर द एंट्रोपी कैलकुलेटेड एंड दिस इज द वेटेड एंड आई एम गेटिंग 0.13, यानी कम इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे, वेरी लेस इंफॉर्मेशन. So the information gain from feature balance is almost 3 times more than the information gain from residence. It means that feature balance with a higher information gain is more informative and it should split the data at the next internal node. यानी इससे जानकारी ज्यादा मिल रही है मुझे, मोर इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग. तो इसी को ब्रेक करना चाहिए रेदर देन ब्रेकिंग द रेसिडेंस पार्ट. तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा और अपने डेटा को जैसे ऊपर ब्रेक करा था ना वैसे ही मैं ब्रेक कर दूंगा. यही होता है डिसीजन ट्री. ये वर्किंग है डिसीजन ट्री का. विद द सिंपलेस्ट एग्जांपल हाउ डिसीजन ट्री वर्क, किस बिहाफ में स्प्लिट होता है वो. तो इंफॉर्मेशन गेन इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया. आपने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ इट आई कैन ब्रेक अ डिसीजन ट्री. ओके, तो क्या ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है आपको? इंफॉर्मेशन गेन हाई, the feature which is giving high information gain, that will be splitted obviously, जिसकी एंट्रोपी हाई होगी. ठीक है, क्योंकि पेरेंट की एंट्रोपी हाई होगी और चाइल्ड की एंट्रोपी कम होगी, तभी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा. क्योंकि चाइल्ड का एंट्रोपी लेस होने का मतलब क्या है? नाउ लॉट ऑफ एनर्जी इज बिन रिलीज्ड, नाउ आई एम इन अ स्टेबल पोजीशन देन द प्रीवियस वन, देन ओनली इंफॉर्मेशन विल बी हाईएस्ट. दैट्स द केस. ये होती है इंफॉर्मेशन गेन का कॉन्सेप्ट. ये मुझे बताना था आपको. ऑल राइट. तो भाई ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने डिसीजन ट्री में. इसको तो सॉल्व करना है पूरा. दिस आई नीड टू सॉल्व इट कंप्लीटली. ओके, तो टू कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे आपको रिवाइज करवाने थे यहाँ पे. वन इज द के एल डाइवर्जेंस, ओके, के एल वन, और दूसरा था आपका इंफॉर्मेशन गेन. तो जब तक एग्जाम्पल नहीं होता तब तक द थिंग्स आर नॉट क्लियर. अभी इंफॉर्मेशन गेन का एग्जाम्पल आई टोल्ड एंड सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था. बट अभी आपने देखा यू आर डीलिंग विद द डेटा whose target is whose target is categorical. that means यस या नो वाला था. ठीक है, यानी कि वो पे ऑफ कर पाएगा या पे ऑफ नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लिया है आपने डिवीजन करने के लिए, इसी से ही समझना है. द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओवर रिग्रेशन ऑल्सो. डिसीजन ट्री रिग्रेशन आई विल टीच सेपरेटली. सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड देयर ऑल्सो. ओके, तो भाई हमारे सामने इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग. ओके, और यहां जो भी कॉन्सेप्ट लग रहे, एंट्रोपी वाला, क्रॉस एंट्रोपी, रिलेटिव एंट्रोपी, ओके, एंड इंफॉर्मेशन गेन, ये सब डिसीजन ट्री में आपके लिए एप्लीकेबल. सो केएल डाइवर्जेंस, calculating a divergence of a feature from its baseline, that is a divergence. फॉर्मूला आपको पता है, px log of px upon qx. किसी एक को या तो px को रेफरेंस मान लो या qx को रेफरेंस मान लो. लेट अस सपोज दिस इज द रेफरेंस, दिस इज द आउटकम. कैलकुलेट द रिलेटिव एंट्रोपी. कभी भी ये सिमेट्रिक नहीं होता, असिमेट्रिक है ये. इतना बता दिया आप, बहुत है. इंफॉर्मेशन गेन आपने देख लिया. ठीक है, तो डिसीजन ट्री में ऑल दीज थिंग्स आर कीपिंग इंपॉर्टेंस. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में बताया भी था, आज मुझे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करना था.
So I did that. I am having Gini impurity also as one of the criteria. Gini. So Gini impurity is to predict the likelihood that a randomly selected example that is incorrectly classified by a node. इम्प्यूरिटी है ये, जिनी इम्प्यूरिटी है। अब ये तो बड़ी हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन है। ओके, समझना बेकार है ऐसी डेफिनेशनों का। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ओके, यानी कि क्या, वेट, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 and the formula for Gini impurity is 1 minus summation of pi का स्क्वायर। दैट मीन्स probability of class A and probability of class B। तो वहां पर आप एंट्रोपी में लॉग लॉग खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग विद द लॉग। हियर यू डू नॉट हैव टू प्ले विद द लॉग। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेम डेटा विच वी हैव चेक्ड, यहां पे बात करें ऊपर, या दिस वन, just let's take this one. Here I am having 2 yes and 3 no. 2 yes and 3 no. So the Gini impurity will be 1 minus 2 by 5 का स्क्वायर माइनस 3 by 5 का स्क्वायर। ये Gini impurity आएगा, where 2 by 5 is the probability of yes and 3 by 5 is the probability of no। ठीक है, एंट्रोपी लगाते तो क्या लिखते, 2/5 log of 2/5, 3/5 log of 3/5, ये लिखते है ना, दोनों के बाहर माइनस करते, ओवरऑल उसको कैलकुलेट यू विल डू एंड विल गेट द रिजल्ट। यहां ऐसा नहीं है, यहां है 1 minus 2/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। दिस इज जिनी इंडेक्स, वन ऑफ द क्राइटेरिया एज लाइक एंट्रोपी टू स्प्लिट अ डिसीजन ट्री। ओके, आगे इस पर हम और बात करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास काफ़ी अदर नोट्स भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर करूँगा। ओके, फाइन। ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग यू वेरी वेल नो, इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। डिसेंट्री रिग्रेशन आई विल टेक अप आफ्टरवर्ड्स। ओके फाइन, मुझे अभी जो बात करना है इम्प्योरिटी को लेकर, ये देखिए, दैट इज द थिंग विच आई वांट टू टेल। इम्प्योरिटी है ना, समझा भी दिया, दिस इज लो इम्प्योरिटी, दिस इज मीडियम इम्प्योरिटी, दिस इज हाई इम्प्योरिटी। ओके, व्हेन द डेटा इज हेट्रोजीनियस द इम्प्योरिटी विल इंक्रीज। ओके, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। हाउ टू मेजर इम्प्योरिटी, तो ये जो आपको क्राइटेरिया है ना, एंट्रोपी, जिन इंडेक्स, ये इम्प्योरिटी को मेजर करने के ही क्राइटेरिया हैं। इम्प्योरिटी मेजर क्राइटेरिया। ओके, तो एंट्रोपी भाई आपने पढ़ लिया, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिस्क्राइब समथिंग, क्वांटाइजेशन, तो ये एंट्रोपी होता है। जिन इम्प्योरिटी इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी इन द सैंपल, इट इज बिटवीन 0 and 1। 0 मीन्स सैंपल इज परफेक्टली होमोजीनियस, यदि ऑब्वियसली ना, जिन इंडेक्स है जिन इम्प्योरिटी है, यदि 0 होगा तो होमोजीनियस होगा, सीधी सी बात है। और 1 होगा तो मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगी, मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगी, हेट्रोजीनियस होगा। ओके, ये बात तो क्लियर ही है। फाइन। ओके, तो भाई क्या है, आप ये लिख रहे हैं 1 माइनस समीशन ऑफ पी आई का स्क्वायर, एंड ये लिखा आपने। ना व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्योरिटी मेजर इन डिसीजन ट्री, भाई इसी के बेसिस पर तो तोड़ते हैं अपन डेटा को। सो इंप्योरिटी मेजर द होमोजेनिटी इन द डेटा सैंपल। if the sample is homogeneous, the sample are from the same class, obviously impurity कम है, homogeneous है यानी only one class exist, और heterogeneity है that means different class exist। यही करते हैं। और जो आपको इंफॉर्मेशन गेन वाला एग्जांपल दिया वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, वो 30 इंस्टेंसेस वाला।
ओके, एंड उस डेटा में दो फीचर थे आपके पास, टू फीचर्स वर प्रेजेंट, वन इज योर बैलेंस, वन इज योर रेसिडेंस. फर्स्ट यू चेक विद द बैलेंस. बैलेंस में एक कंडीशन था कि 50 पर स्प्लिट करना है या नहीं करना है. 50K का बैलेंस हो तो स्प्लिट करना है नहीं करना है. ठीक है, तो 50 पर आपने देखा एक दो ट्री बने, एंड देन आपने इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, एंट्रोपी निकाली, वेटेड निकाला, और पेरेंट में से माइनस कर दिया. रेसिडेंस का भी यही करा. यू डिड द सेम थिंग फॉर द रेसिडेंस, एंड यू फाउंड दैट द इंफॉर्मेशन गेन इज मोर इन योर बैलेंस. सो आई विल स्प्लिट द डेटा अकॉर्डिंग टू द बैलेंस. बैलेंस से स्प्लिट कर दूंगा. यानी कि अब क्वेश्चन नहीं उठा सर ये 50K आया कहां से. ये आपको गिवन था, ये आपको गिवन था. ओके, अभी जब मैं पूरा वर्किंग बताऊंगा तो और क्लियर होगा. दिस वॉज गिवन टू यू कि ये अब अभी अज्यूम करिए दिस इज द थ्रेशोल्ड एंड डिवाइड द डेटा एंड चेक एवरीथिंग. ओके, हर एक डेटा पॉइंट पे चेक होता है. जैसे ये आपका डेटा है ना, दिस इज योर डेटा. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फीचर वन, दिस इज योर फीचर टू, एंड दिस इज टारगेट. तो ये वाली रो मुझे किस फीचर के अबाउट स्प्लिट करना है. फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू स्प्लिट द डेटा अबाउट दिस फीचर. तो इस फीचर की किस वैल्यू के अबाउट स्प्लिट करना है ये देखना है मुझे. तो यहां पर कहीं मान के चलिए 50K होगा, 50K वॉज प्रेजेंट. तो इस फीचर में इस वैल्यू के अबाउट मैंने डेटा को स्प्लिट कर दिया. आधा ये अलग हो गया, आधा ये अलग हो गया. ठीक है, ऐसे करके मेरा डेटा अलग अलग हो गया. ओके, फाइन. ऐसे स्प्लिटिंग कर रहे हो. तो यहां पर आपको वही मेंशन करा है. तो डिसीजन ट्री को हम कार्ट बोलते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, ये बोलते हैं. ठीक है, ये चीज फॉलो करती है. ठीक. व्हाट आर द अजम्पशंस इन डिसीजन ट्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, आई विल टॉक ईच एंड एवरीथिंग, सब बता दूंगा मैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं पढ़ने लिखने. देयर आर सेवरल अजम्पशंस मेड इन डिसीजन ट्री. हम ये मान के चलते हैं कि ट्री का बाइनरी स्प्लिटिंग होगा, बट नॉट मैंडेटरी, है ना. वी आर अज्यूमिंग दैट द ट्री विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. टिपिकली टू पार्ट्स में स्प्लिट होगा, बाइनरी स्प्लिट होगा, मीनिंग ईच नोड डिवाइड द डेटा इनटू टू सबसेट्स बेस्ड ऑन अ सिंगल फीचर और अ कंडीशन. तो एक फीचर में लेट अस सपोज आपने लिया था बैलेंस, और उसमें कंडीशन थी ग्रेटर देन 50 की. तो अबाउट अ फीचर ऑन अ सर्टेन कंडीशन इट विल स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, ऐसा बोला. दिस इज एन अजम्पशन. जरूरी नहीं है कि वो टू पार्ट में ही हो. आप नंबर ऑफ स्प्लिट एज एन हाइपर पैरामीटर है, आप दे सकते हो कितने में करना है, टू में, थ्री में, दिस इज व्हाट यू कैन गिव. इट्स अ हाइपर पैरामीटर. बाय डिफॉल्ट टू है, टू पार्ट्स में स्प्लिट होगा, अजम्पशन है. रिकर्सिव पार्टीशनिंग, दैट मीन्स ट्री will be dividing recursively. Each node will divide into child, then child, then child, वो होते रहेगा डिवाइड जब तक कंडीशन नहीं मैट कर जाती. और देर इज एनी स्टॉपिंग क्राइटेरिया तो आप देते हो, ये भी एक हाइपर पैरामीटर है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया. यू विल से माई ट्री विल गो टू मैक्सिमम डेप्थ 5, बस उसको 5, फिर 5 लेयर्स तक ब्रेक करना है, बस इससे ज्यादा नहीं करना. तो ये क्राइटेरिया है, आप दे सकते हो. नहीं दोगे, इफ यू डोंट गिव द क्राइटेरिया, तो जब तक ट्री सॉल्व नहीं हो जाती, अनलेस एंड अनटिल ट्री डजंट सॉल्व, वो स्प्लिट होता चला जाएगा. सो इफ योर डेटा इज ह्यूज एंड दैट पर्टिकुलर केस, आप ये देख लीजिए कि कितना आपको क्राइटेरिया देना है स्प्लिटिंग. ओके, स्टॉपिंग क्राइटेरिया दे सकते हैं. फीचर इंडिपेंडेंस दैट इज कॉमन इन ऑल,
द फीचर्स इन अ डेटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये तो होता ही है, क्योंकि डिसीजन ट्री ना ओवरफिटिंग का इशू है इसके अंदर सबसे ज्यादा, इट विल लीड टू ओवरफिटिंग, इसका ध्यान रखना पड़ता है मुझे. सो फीचर इंडिपेंडेंस इज देयर, मैंडेटरी. होमोजीनियस. Decision tree aim to create homogeneous subgroups, meaning that the samples within a node are as similar as possible. Homogeneous data बनाने की कोशिश करता है, heterogeneous नहीं. So whatever be the samples present in a data, वो ब्रेक करेगा और उसके सैंपल बनाएगा. ओके तो जो वो सैंपल बनाएगा उसमें 1 1 1 कोशिश यही करेगा कि एक ही क्लास हो. ठीक है, इट विल ट्राई दैट ओनली वन क्लास शुड हैव टू बी देयर. 1 1 1 या 0 0 0. 0 1 0 1 होगा तो अगेन हेट्रोजीनियस है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा मुझे. सो टू ट्राई टू मेक होमोजीनियस डेटा, नॉट हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस था तभी तो ब्रेक कर रहे हैं, ये तो क्राइटेरिया है. हेट्रोजीनियस था तभी तो ब्रेक कर रहे थे, इम्प्यूरिटी थी ना उसमें, ब्रेक कर रहे थे. टॉप डाउन अप्रोच ये तो होती ही है ट्री में, तो टॉप डाउन अप्रोच तो लगाते ही हो, रूट से लीव्स की तरफ, फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, तो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है. कैटेगरिकल एंड नॉन कैटेगरिकल यानी न्यूमेरिकल फीचर्स दोनों को हैंडल कर लेगा ये, कोई इशू नहीं. बोथ विल स्प्लिट, दोनों की स्प्लिटिंग हो सकती है. ओवरफिटिंग होता है डिसीजन ट्री, ध्यान देना. इट कैन कैप्चर द नॉइस, कोशिश ये करेगा आउटलायर आउटलायर निपटा दो. ओके, रिमूव आउटलायर, लेकिन लेकिन ये इम्पैक्ट आउटलायर को भी ये टैकल तो कर लेगा, लेकिन ओवरफिटिंग के चक्कर में मैं बोल रहा हूं कि ये नॉइस का इम्पैक्ट, नॉइस वही डेटा होगा ना, वही डेटा पॉइंट्स होंगे जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे मेरे मॉडल को. तो रिमूव द आउटलायर एंड देन अप्लाई द डिसीजन ट्री, क्योंकि ओवरफिटिंग की तरफ चले जाता है ये. सो यूज अप्रोप्रिएट स्टॉपिंग क्राइटेरिया एज पर द अजम्पशन. और यदि आप पूरी ट्री चला दोगे तो 99 100% 1 दे देता है. छोटे डेटा पे यूज नहीं करना, नहीं तो 1 ही आएगा आपको. एवरेज डेटा पे यूज करिए डिसीजन ट्री, छोटे डेटा पे एक्यूरेसी 100% दे देगा वो ओवरफिटेड मॉडल. ठीक है, आई कैन टेक जीनी इम्प्यूरिटी और एंट्रोपी टू परफॉर्म स्प्लिटिंग, कोई भी ले सकता हूं मैं. आई कैन टेक एनी ऑफ देम एज अ क्राइटेरिया फॉर स्प्लिटिंग. द चॉइस ऑफ इम्प्यूरिटी मेजर कैन इम्पैक्ट द ट्री कंस्ट्रक्शन. हाँ, ऐसा हो सकता है कि एंट्रोपी लिया है तो ट्री कुछ और बन रहा है, और जीनी लिया है तो ट्री कुछ और बन रहा है, हो सकता है ऐसा. द ट्री कैन डिफरेंशिएट, there's a चांस. ओके, हो सकता है कोई मिसिंग वैल्यू ना हो, वो तो एवरी मॉडल में हम यूज करते हैं. देयर इज नो मिसिंग वैल्यू इन द डेटा. फीचर इंपॉर्टेंस निकालने में बड़ी मदद करता है ये. आउटलायर नहीं होने चाहिए, इट इज सेंसिटिव, ट्रीज कैन बी, वो आउटपुट दे सकता है. एक बड़ी बात है डिसीजन ट्री में, फीचर इंपॉर्टेंस. भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाली फीचर इंपॉर्टेंस? क्योंकि क्योंकि डिसीजन ट्री फीचर के अबाउट ही उसकी स्टडी करके ही स्प्लिट होता है, तो इसको हर एक फीचर का महत्व पता है. वी से ना feature importance can be only calculated by decision tree, random forest, XGBoost. They do that. Why? Because they follow the criteria of splitting on the basis of feature only. By understanding the feature, तो उनको importance तो पता ही होगा, सीधी सी बात है. ओके, तो फीचर इंपॉर्टेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं. आउटलायर नहीं होना चाहिए, सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा मत ले लीजिएगा नहीं तो ओवरफिटिंग हो जाएगा. सैंपल साइज शुड बी बिग, नॉट स्मॉल. ठीक, ये कुछ अभी अजम्पशंस हैं डिसीजन ट्री के. अभी मेरे पास बचा क्या है बताने के लिए? द कंप्लीट न्यूमेरिकल, ये वाला. ठीक है, विच आई एम गोइंग टू सॉल्व यूजिंग डिसीजन ट्री, जो कि मैं कल की क्लास में कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है, और जो बेसिक टर्म्स है उसे इलॉबरेट या एक्सप्लोर कर दूंगा डिसीजन ट्री के. दिस इज द न्यूमेरिकल वी हैव टू सॉल्व. इट्स क्वाइट सिंपल. ठीक है, कोई टफ नहीं है यहाँ, बड़ा आसान.
विल डू दैट। ठीक है, कंप्लीट डिसेंट्री कैसे बनता है, विल लेट यू नो दिस न्यूमेरिकल, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आज ही हो गया, टुडे ओनली यू आर एबल टू क्रैक डाउन जीन, जो था जीन इम्प्योरिटी बता दिया, जीन इंडेक्स, इंफॉर्मेशन गेन से आपको क्लियर हो गया। लेट 30 इंस्टांसेस थे, कैसे ब्रेक करके आपने उनके सेट बनाए, एंड हाउ यू कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन, एंड यू टोल्ड हाई इन्फॉर्मेशन गेन जिस फीचर का होगा उसके अबाउट स्प्लिट करना है मुझे। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। So give me a day more to explain you this numerical. We'll connect tomorrow again on the same time to study ahead. Fine. That's what I want to teach today in today's class.